Hello everyone, welcome to the second webinar of YC Society, that is Youth Against Cyber Crime Society. Today's session is all about protect yourself from hardware and phishing attacks. Our today's speaker are Ashley Pillai, EC Council holder, diploma holder, and Kanish Sharma, EC Council certified ethic hacker. So without wasting any time, let's get started. Hello, ladies and gentlemen. Hope you guys are doing well in this pandemic situation. So, we all have gathered here for this wonderful webinar for hardware and phishing security organized by YC Society. YC Society is a group formed by some of the cybersecurity experts and ethical hackers whose aim is to create a cyber-safe environment in our country. As we all know that the rate of cybercrime is increasing day by day, and so it's our aim to make you guys learn how to be safe from such cyber attacks. So this would be the first Hindi-based guide for Indian citizens too. तो दोस्तों वाईसी सोसाइटी इसलिए बनाया गया है कि ताकि हम लोगों तक ये मैसेज पहुंचा पाए कि हम कैसे साइबर अटैक से बच सकते हैं। वाईसी ग्रुप इंडिया के कुछ जाने माने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और एथिकल हैकर्स ने बनाया है, जिनका लक्ष्य लोगों तक साइबर सिक्योरिटी का मैसेज और स्कोप बताना है। So we have our supporting volunteers with us: Ashley Pillai, also known as Captain Grim; Kanish Sharma, also known as Loki. We will be learning from these people who were previously black hats and now have changed to cybersecurity researchers, and they will share their knowledge with us. So here I have myself as an anchor, a volunteer at YC Society. I am a HID researcher, also a lead researcher with certification of CSF by IBM, and I have a total experience of 1.5 years in this field of cybersecurity and ethical hacking. Hi, this is Ashley Pillai. I'm the owner and the founder of 59 Crew Unscripted Bots. I'm also a volunteer at YC Society. I do have an EC Council diploma and a CH certification by EC Council. I am a cybersec instructor, a hardware hacker, and a ransomware security analyst. I do have total of 4.5 years of experience in Handy. Hey everyone, it's Kanish Sharma here. I'm CEO at Cybers and a volunteer at the Act Society. I'm a certified ethical hacker by EC Council. I have solved more than 70% of cyber harassment cases in CyberCell, though. I'm a white hat hacker and a cybersecurity instructor with a total of 8 months experience in this field. तो आज हम देखेंगे कि हार्डवेयर अटैक्स और फिशिंग अटैक्स क्या होता है और देख सीखेंगे कि इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले हार्डवेयर अटैक के बारे में बात करें तो हार्डवेयर मतलब इंग्लिश के दो शब्दों से बना है, हार्ड और वेयर। हार्ड मतलब जो सख्त किसी को फील कर सके, और वेयर मतलब जिससे काम चला सके। तो कंप्यूटर के फील्ड में बहुत से हार्डवेयर होते हैं, जैसे कि हमारा कंप्यूटर का मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, मदरबोर्ड, ये सब हमारे हार्डवेयर में आते हैं। और इनसे इनमें जो अटैक होता है इनसे कैसे बचा जा सकता है ये आज हम देखेंगे। और दूसरा टॉपिक है फिशिंग अटैक्स। हम देखेंगे कि कैसे हैकर्स फिशिंग एग्जीक्यूट करते हैं और कैसे वो हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह के लॉगिन पेज के फेक फिशिंग पेज बना के हमारे लॉगिन का इन्फो एक्सेस करते हैं। हम इसके बारे में डीप में जानेंगे और सीखेंगे हमारे वॉलंटियर्स के थ्रू। एशली पिल्लाई, ओवर टू यू। थैंक यू क्रिश्चियन। सो जैसे क्रिश्चियन ने बताया कि हार्डवेयर जो है वो दो अलग अलग वर्ड्स को मिला के बनता है। तो हार्डवेयर मेनली क्या होता है? हार्डवेयर जैसे कि हमारा सीपीयू है, ओके, इंजेक्टेबल। अभी जब हम लोग स्कूल में थे तब हम लोग को सिखाया गया था कि इनपुट डिवाइसेस होते हैं और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस में होते हैं कीबोर्ड, माउस, यूएसबी पेन ड्राइव वगैरह वगैरह, ओके। और आउटपुट डिवाइसेस में होते हैं जैसे कि प्रिंटर, स्पीकर्स, ओके। अभी यहाँ पर हम लोग जो देखेंगे वो है इनपुट डिवाइसेस के कैसे हैक होते हैं, ओके, और उन हैक्स को कैसे प्रिवेंट करते हैं। अभी काफी लोगों का है कि भाई ऐसा मतलब हमारे लिए, अगर हम लोग नॉर्मल यूजर है तो हमारे लिए हैकर का एक्सेस ग्रांटेड आना काफी दुख की बात है, ठीक है। ये मोदी इतने सालों से बोलता आ रहा है कि टेक टेक वर्ल्ड बनाओ, टेक इंडिया बनाओ, ओके। तो और टेक इंडिया होने के बावजूद भी हम काफी लोगों को इस सिक्योरिटी मेजर्स के बारे में कुछ पता नहीं होता, ओके।
तो और फिर आता है एक्सेस डिनाइड, जो हमारे लिए काफी बढ़िया चीज होती है। ओके, तो इस हार्डवेयर सिक्योरिटी में हम लोग 4 टॉपिक देखेंगे। जो फर्स्ट टॉपिक है वो है डिफेंडिंग फ्रॉम विंडोज लॉगिन बाईपास। ओके, अभी जो नॉर्मल ह्यूमंस होते हैं, जैसे कि अभी नॉर्मल सिटीजन सिविलियंस होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि विंडोज को, उन लोग को लगता है कि भाई विंडोज में सारा कुछ हो जाता है, इसलिए वो अपना जो बेसिक काम है, बेसिक से लेके हाई एंड काम, सारे के सारे विंडोज पे करते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसमें हम लोग देखेंगे कि विंडोज कैसे हैक होता है और विंडोज का हैक कैसे बचाया जा सकता है। ओके, उसके बाद आता है लिनक्स लॉगिन बाईपास। अभी काफी लोगों का ऐसा है कि मतलब हैकर का डिवाइस कौन हैक करेगा, लेकिन विंडोज से ज्यादा इजी है हैकर का डिवाइस हैक करना। बस एक ही चीज का ध्यान रखना पड़ता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। नेक्स्ट आता है HID अटैक्स। ओके, अभी HID अटैक्स को हम लोग अगर सिंपल टर्म में लेंगे, उसको कहते हैं ह्यूमन इंटरफेस डिवाइसेस। ओके, अभी ह्यूमन इंटरफेस डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिससे हम लोग ह्यूमंस लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी सबको पता है पेन ड्राइव को कैसे यूज करते हैं पीसी में डाल के, कीबोर्ड का कैसे काम आता है। ओके, ऐसा तो नहीं है ना कि हम लोग ने यूएसबी वाला जो पिन है, यूएसबी वाला जो इनपुट वाला है, हम लोग ने वो लैपटॉप के ईयरफोन वाले जैक में डालने का ट्राई कर रहे हैं। ऐसा तो कभी नहीं होता है। ओके, तो और फाइनल वाला है जो है सबसे बेस्ट सिक्योरिटी, वो है ओवरऑल सिक्योरिटी बाय हार्ड ड्राइव इंक्रिप्शन। और इंक्रिप्शन के भी 2 टाइप्स होते हैं मेनली, और वो टाइप भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ये जो मैं हैक बताने वाला हूँ, ना कि मैं हैक नहीं बताऊंगा बल्कि सिक्योरिटी मेजर्स बताऊंगा क्या क्या लेना चाहिए। ओके, तो मैं जो भी विंडोज के बारे में बताऊंगा वो विंडोज 7 से, विंडोज एक्सपी से लेके अभी जो आगे आने वाला विंडोज है, मैं उसको भी इंक्लूड करूंगा। क्योंकि विंडोज जो है वो अपने बेटरमेंट के तरफ ज्यादा ध्यान देता है, बल्कि अंदर के चीजों को नहीं ध्यान देता है। तो यहाँ पर हम लोग अगर जो अंदर की चीजें, मतलब जब से तुम अपना पीसी स्टार्ट कर रहे हो बटन प्रेस करके जहां तक तुम्हारा लॉगिन स्क्रीन आता है, उसको हम लोग बैक एंड डेवलपिंग मोड बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि वो जो काम है वो डेटाबेस वो सब के अंदर होता है। ओके, फिर लॉगिन के बाद जो वाला जो होता है वो फ्रंट एंड वाला होता है, क्योंकि हमारे बटन प्रेस करने से लॉगिन स्क्रीन तक, ठीक है, लॉगिन स्क्रीन के पहले जो भी प्रोसेस होता है वो हम लोग को नहीं पता क्या होता है। बस हम लोग को इतना पता होता है कि हाँ भाई हम लोग ने बटन दबा दिया तो सिस्टम चालू हो रहा है। लेकिन यही बात लॉगिन स्क्रीन आने के बाद देखेंगे तो सबको पता होता है कि उनको क्या करना है। तो यहाँ पर मैं विंडोज 12 जो आया नहीं है, जो जिसका प्लानिंग भी नहीं है अभी तक, ठीक है, ये सारे चीज हैक हो सकते हैं, हर एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हैक हो सकता है। ओके, अगर ये मेजर लिया, जैसा जो मेजर्स मैं बताऊंगा, अगर वैसे तुम लोग ने किया, तो मतलब बोल सकते हैं कि 99.99% तो बच ही जाओगे। और बाकी जो 0.001% है वो खुद के गलती के वजह से होगा। और खुद की गलती के वजह से कैसे? खुद के गलती के वजह से मतलब तुमने भाई लैपटॉप चालू रखा है, ठीक है, लैपटॉप चालू रखा है लेकिन तुमने लॉक भी नहीं मारा है, तब हो सकता है। ओके, अगर तुमने रॉक मारने के बाद भी अगर तुमने कुछ कुछ भी मतलब हिंट के सेक्शन में तुमने अच्छा सा हिंट छोड़ दिया जिससे कोई भी ऐसा गेस कर सकता है, तुम्हारे कोई जान पहचान वाला गेस करके पासवर्ड डाल सकता है, तब वो 0.001% आएगा। ओके, और नेक्स्ट आता है डेबियन बेस्ड काली लिनक्स। ओके, जो हैकर्स मोस्टली यूज करते हैं। ओके, यहाँ पर कुछ लोगों को ऐसा मतलब मस्त सा लाल लाल दिखता होगा ऐसा, लेकिन कभी कभी है ना वो हैकर्स लोग काफी फायर में हो जाते हैं, ऐसा मतलब कुछ वो नया सीख जाते। तो एनीवेज, अ बैड जोक। ठीक है, तो विंडोज पे आएंगे तो विंडोज में हम लोग को 3 चीज देखना है। सबसे पहला होगा विंडोज बाईपासिंग क्या होता है, नेक्स्ट है विंडोज बाईपासिंग कैसे काम करता है, और थर्ड वाला जो है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो बाईपासिंग क्या होता है, अभी अगर मैं नॉर्मल वर्डिंग्स में देखूंगा, अगर नॉर्मल प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाऊंगा, तो लोगों को पता है कि बाईपास रोड करके भी कुछ चीज होता है। ठीक है, जो ट्रैवलर्स है, जो ट्रैवल नहीं भी करते उनको ही पता होता है। ठीक है, तो बाईपास रोड क्या होता है कि एक नॉर्मल रोड है सादा सा। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर गुजरात टू मुंबई आना है तो रूट्स तो काफी है लेकिन नेशनल हाईवे एक ही आने वाला है। राइट, कि ऐसा नहीं है कि मोदी गवर्नमेंट के पास ज्यादा ही पैसा आ गया तो उन लोग ने जंगल से भी कोई नेशनल हाईवे निकाला है, ऐसा नहीं है।
ओके, तो बाईपास रोड कैसे काम करेगा? बाईपास में कैसा होता है कि एक मेन रोड है और मेन रोड पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो कंस्ट्रक्टर्स लोग ने क्या किया, तो बाजू से एक और रोड निकाला जो सेम डेस्टिनेशन पे जाता है। अभी नेशनल हाईवे पे काम चलेगा तो ब्रिज के नीचे से उन लोग कोई और रूट निकालेंगे। तो वैसे ही ये आईटी टेक वर्ल्ड वाला बाईपासिंग। ओके, तो इसमें बाईपासिंग कैसे होगा? अभी जो नॉर्मल यूजर्स है, हम लोग बटन प्रेस करते हैं, लॉगिन का पासवर्ड आईडी डालते हैं, फिर उसके बाद हम लोग लॉगिन हो जाते हैं। लेकिन हैकर्स लोग क्या करते हैं, हैकर्स लोग को सिर्फ एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ता है। जैसे कि अगर हम लोग ने रूट चेंज करने को गए, तो अगर ब्रिज के ऊपर चढ़ गए हम लोग, ओके, ब्रिज के ऊपर चढ़ने के बाद हम लोग को पता चला काम चल रहा है, तो हम लोग वापस से पीछे आके नीचे वाले रोड से जाएंगे। ओके, तो इसी में भी वही काम आता है। ऐसा क्या होता है कि जो रूट है हमारा, जो रूट है, रूट चेंज होता है सिर्फ एक स्टेप ऐड करके। ओके, अभी एक स्टेप वो कैसे ऐड होगा? हैकर्स लोगों को एक चीज काफी पसंद आती है, वो है कमांड प्रॉम्प्ट। ओके, कमांड प्रॉम्प्ट से मतलब जैसे कि हैकर्स काली लिनक्स यूज करते हैं, काली लिनक्स में भी हैकर्स जो है वो कमांड प्रॉम्प्ट से करते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट नहीं बोलते हैक, अपना काली लिनक्स पे उसको टर्मिनल बोलते हैं, लेकिन विंडोज में कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट और कुछ तो है, उसका नाम भूल गया मैं। ओके, तो कमांड प्रॉम्प्ट होता है कि, और नेक्स्ट है हाउ विंडोज बाईपासिंग वर्क। ओके, विंडोज कैसे हैक होता है और उसका बचने का एक तरीका। और लास्ट में है रीनेमिंग द cmd.exe टू एन अदर नेम। ये मैं आपको बताऊंगा आगे। अभी यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में कुछ डाला है, वो एक काफी लेम एंड स्टर्म लैंग्वेज में है। टू फूल द अटैकर बाय नॉट कीपिंग द डिफॉल्ट नेम एंड द एक्सटेंशन। ओके, मैं आपको जब आगे बताऊंगा तब आपको बराबर समझ में आएगा। ओके, तो जब विंडोज ऑन करते हैं, अभी नॉर्मल यूजर कोई विंडोज ओपन करेगा, तो ये जो राइट साइड में जहां से एरो आ रहा है, एरो के नीचे वाला, वहां पर वो लोगों ने कभी देखा नहीं होगा। ओके, मेरे को 4.5 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैंने अभी तक जितने भी नहीं, मतलब काफी एंड्रॉयड हैक किए, काफी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैक किए, काफी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैक किए। इसमें ये जो है, ये जो व्हील चेयर वाला जैसा है, व्हील चेयर वाला ऑप्शन में आज तक मेरे को नहीं लगता कोई नॉर्मल यूजर होगा तो गया रहेगा। उसका काम क्या है, चालू करने का है, पासवर्ड डालना है, गेम खेलना है या काम करना है जो भी, फिर खत्म। लेकिन हैकर्स इसी का फायदा उठाते हैं। ओके, तुमने पासवर्ड डाला, ओके, तो हैकर्स क्या करेंगे, ये जो मैग्नीफायर का ऑप्शन है जो जिसको हाईलाइट करके रखा हुआ है, तो मैग्नीफायर क्या करता है, मैग्नीफायर जो है, अभी सबको पता है कि मैग्नीफाइंग लेंस क्या होता है, कि जो छोटे छोटे बारीक वर्ड्स है या लेटर्स है उसको रीड करने में हेल्प करता है। ओके, तो मैग्नीफायर भी वैसे ही काम करता है। तो मैग्नीफायर को जैसे ही तुम सेलेक्ट करोगे, वो तुमको एक मैग्नीफाइंग ग्लास देगा जिससे तुम छोटे छोटे बारीक लेटर्स को पढ़ सकते हो। लेकिन हैकर्स लोग क्या करते हैं, हैकर्स ये करते हैं कि हैकर सिस्टम को फूल करने को ट्राई करते हैं। मतलब मैग्नीफायर नहीं, जैसा मैं बताया कि सीएमडी से कुछ भी करा जा सकता है सिस्टम के अंदर, जब तक तुम लोग रूट यूजर हो। ओके, रूट यूजर मतलब एडमिन यूजर, ठीक है, हाईएस्ट प्रिविलेज वाले यूजर। ठीक है, तो हैकर्स क्या करते हैं, अभी एक मेथड होता है जिससे ये हैकर्स, ये जो फाइल सिस्टम है, अभी जो लोग इतने टेकी नहीं है उन लोग को लगेगा कि ये जो है, ये वाला जो स्क्रीन है, ये विंडोज चालू होने के बाद आता है, लेकिन नहीं। एक और वे है जिससे आप लोग ये ला सकते हो। ओके, एक मोड होता है, अगर 2 बार पावर बटन दबा के या 3 बार पावर बटन दबा के रीस्टार्ट करेंगे सिस्टम को, तो वहां पर कुछ ऑप्शंस आता है जिससे हम लोग को इशू को रिजॉल्व करने का तरीका आता है। और इशू को रिजॉल्व करने के तरीके में एक एडवांस ऑप्शन होता है, उसमें बताता है कि फर्मवेयर अपडेट करने के लिए हम लोग को फाइल सिस्टम से एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। और विंडोज ने यही एक चीज गड़बड़ कर दिया है इसमें। ओके, विंडोज ने क्या किया है, विंडोज ने इस अंदर के डेवलपमेंट को, मतलब जो प्री डेवलपमेंट प्रोसेस है, जो डेटाबेस सब है, उसको बराबर कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है, और उसी का फायदा हम लोग उठा सकते हैं। ओके, तो हैकर्स क्या करते हैं कि ये जो magnify.exe है, अभी ये magnify.exe कौन सा है, ये मैग्नीफायर है। ठीक है, मैग्नीफायर जो है वो magnify.exe है। कि जैसे ही मैग्नीफायर रन करेंगे हम लोग इसमें से, तो ये वाला exe वाला फाइल ओपन होगा।
ओके, तो हैकर्स क्या करते हैं, ये मैग्नीफाई डॉट ई है उसको कुछ और नाम दे देंगे, जैसे कि मैग्नीफाई ओल्ड, ठीक है, कुछ भी, ठीक है। आजकल का जो सिस्टम है उस पर डॉट ई वाला एक्सटेंशन नहीं आता है, ओके, तो डॉट ई का एक्सटेंशन का कुछ फिक्र लेने की जरूरत ही नहीं है, तो सिंपल सा आएगा कि मैग्नीफाई करके, ओके। तो हैकर्स क्या करते हैं कि मैग्नीफाई को कुछ और नाम दे देते हैं और ये cmd डॉट ई को मैग्नीफाई का नाम दे देते हैं, ओके। तो इससे क्या होता है कि जगह इन लोग का चेंज हो जाता है। तो मैग्नीफायर क्लिक करेंगे तो सिंपल बात है कि मैग्नीफायर रन करने पे हम लोग को cmd का कमांड प्रॉम्प्ट आएगा, ओके। तो हैकर्स यही चीज का फायदा लेके क्रैक करते हैं एक विंडोज सिस्टम को, कौन सा भी सिस्टम होने दो, चाहे वो विंडोज 12 हो। तुम लोग इस चीज से गारंटी दे सकते हो, अगर तुम्हारे कोई टेक रिलेटेड लोग है तो तुम लोग उसको आराम से बोल सकते हो कि भाई तेरा विंडोज 13 है, मैं उसको भी क्रैक करके दे सकता हूँ, देखो पासवर्ड भूला तो बोल, मैं पैसा लेगा उसका, बस सिंपल सी बात है, बैठे बैठे पैसा भी कमाने चाहिए, ओके। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अभी हम लोग के पास तो लॉगिन आईडी पासवर्ड है, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे दिस पीसी में, ओके, जो विंडोज में जो लोकेटेड होता है, दिस पीसी में जाके हम लोग माई कंप्यूटर के तरफ जाके हम लोग लोकल डिस्क सी में जाना है हम लोग को, ओके। लोकल डिस्क सी में जाने के बाद विंडोज के फोल्डर में एक system32 करके फोल्डर है, उसमें जाना है। तो आई वॉन्ट यू गाइज टू प्लीज कीप अ नोट ऑन दीज डायरेक्टरीज, ओके। ये जो डायरेक्टरी जो भी मैंने बोला वो प्लीज ध्यान रख के लिख लो, ताकि आप लोगों को आगे ना भूल पाओ और आप लोग भी किसी और तीन का हेल्प कर सको, ठीक है। वो मैं वो अपना को सलमान खान के डायलॉग पे काफी भरोसा रखता हूँ, ओके। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो मैग्नीफाई डॉट ई जो है, हम लोग को क्या करना है, मैग्नीफाई डॉट ई को वैसे का वैसा ही रखना है, ठीक है। system32 में आए, फिर यहाँ पर हम लोग को सर्च करना है मैग्नीफाई डॉट ई, तो हम लोग को यहाँ पर एक्सटेंशन के साथ दिखेगा, और यहाँ पर लेफ्ट के तरफ में हम लोग को दिखेगा कि विंडो के तरफ मैग्नीफाई लेंस घूम रहा है, ओके। तो हम लोग को वहां पर कुछ नहीं करना है, बल्कि हम लोग को cmd डॉट ई जो है हम लोग को कुछ और ही नाम देना है उसको, ओके। बस ये याद रखना कि ये नाम हम लोग को पता होना चाहिए, ताकि हम लोग को कुछ सीएमडी की जरूरत पड़े तो हम लोग उसको नाम टाइप करके हम लोग यूज कर सके। अभी अभी आप लोग का क्वेश्चन रहेगा कि रीनेम करने से क्या ही फायदा होगा। मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि विंडोज system32 के अंदर ना इतने सारे फाइल्स होते हैं कि मोर देन मतलब कुछ 10 से 15 जीबी के फाइल्स होते हैं, जितना तुम यूज करते जाओगे उतना तुम्हारा जीबी बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ओके। तो इतने सारे फाइल्स में अगर वो एक एक करके ओपन करके चेक करेगा वो तो काफी मुश्किल होता है। और इसमें ये एक बात अच्छी है विंडोज की कि अगर वो डबल क्लिक करके चेक भी किया ना तो वो ओपन नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग ने फर्मवेयर वाला ऑप्शन यूज कर रहे हैं। तो फर्मवेयर में हम लोग को सिर्फ एंटर करना है वो ऑप्शन पे, जो भी हम लोग का फर्मवेयर वाला EXE हो या कोई भी बिन फाइल हो, ओके, उस पे एरो रख के हम लोग को एंटर दबाना है तो सेलेक्ट हो जाएगा वहां पर। तो बस विंडोज की ये एक बात अच्छी है कि वो डबल क्लिक करके कुछ एग्जीक्यूट नहीं होने देता, ओके। तो यहाँ पर हम लोग जब cmd डॉट ई हम लोग इसको रीनेम करेंगे तब मोस्टली क्या होता है कि इसके साथ साथ जो लोगो है वो भी चेंज होता आता है हो जाता है, ठीक है। अगर समझो अगर हम लोग ने मैग्नीफाई ओल्ड किया, समझो मैग्नीफाई को रीनेम करके कुछ और नाम डाला और cmd डॉट ई को मैग्नीफाई डॉट ई किया, तो ये जो cmd का लेफ्ट में लोगो दिख रहा है ये चेंज हो जाएगा मैग्नीफाई के लोगो के साथ, इंटरचेंज हो जाएगा, ओके। चाहे तो आप लोग मैग्नीफाई का जो ऑप्शन है उसको cmd डॉट ई का नाम दे सकते हो, ताकि जो हैकर वो कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। तो यही है विंडोज का एक सेफ्टी मेजर, सिंपल सा सेफ्टी मेजर है। जो मेन वाला है वो आने वाला है, वो मतलब काफी स्टोरी के साथ आएगा, ओके। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग लिनक्स ओएस के ऊपर, ओके। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स, तो यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ नाम ये जो मतलब ब्लैक हैट हैकर है, काफी मतलब टेकी नाम है, ओके। तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि मतलब ऑलमोस्ट सब लोग लिनक्स ही यूज करते होंगे, ओके। तो लिनक्स में भी काफी आसान तरीके हैं हैक होने के, ओके। अभी मैं सही बोलूँ तो लिनक्स जो है वो विंडोज से इजी होता है क्रैक करने को, उसमें सिर्फ 3 वर्ड्स का चेंज करना पड़ता है, तुमको रूट यूजर का पासवर्ड चेंज करना पड़ता है, वगैरह वगैरह करके तुम कोई भी यूजर का पासवर्ड चेंज कर सकते हो,
ओके तो यहाँ पर हम लोग जो 3 चीज है वो देखेंगे, हाउ लिनक्स बाईपासिंग वर्क्स, ओके लिनक्स कैसा हैक होता है, हाउ चेंजिंग ऑफ रूट पासवर्ड विदाउट द ओल्ड क्रेडेंशियल वर्क्स। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ भी अगर तुम लोग सोशल मीडिया हो, चाहे वो सिस्टम हो, कुछ भी पासवर्ड चेंज करना होगा तो हमेशा ओल्ड पासवर्ड पूछता है। ओके तो यहाँ पर लेकिन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर ओल्ड पासवर्ड भी नहीं पूछता है। ठीक है, ये काफी सिंपल सा टर्म है। मोस्ट ऐसा मेरे को तो लगता है मोस्ट ऑफ द हैकर्स जो भी यहाँ पर है सब लोगों को पता होगा। ये सिंपल सा चीज है लेकिन काफी लोगों को पता नहीं भी है। ओके और थर्ड वाला है डिसेबलिंग ग्रब बूट ऑप्शन। ओके ये वाला जो स्टेप है ये गूगल पे आराम से मिल जाएगा। एक एक टूल है जिसका नाम है ग्रब कस्टमाइजर, ग्रब हाइफन कस्टमाइजर। ठीक है, टर्मिनल पे डालोगे वहां पर इंस्टॉलिंग का ऑप्शन देगा, इंस्टॉल करके वहां से डिसेबल कर सकते हैं हम लोग बूट लोडर के ऑप्शन को। ओके तो यहाँ पर लिनक्स बाईपासिंग कैसा काम करता है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो दो ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, जैसे पीसी हम लोग ने स्टार्ट किया, अगर हम लोग का बूट लोडर चालू है, ओके बूट लोडर में दो ऑप्शन आता है, एक काली लिनक्स और एक एडवांस ऑप्शन फॉर काली लिनक्स। ओके अगर अगर ड्यूल बूट किया होगा विंडोज के साथ तो यहाँ पर एडवांस के नीचे विंडोज का भी आएगा, बूट इनटू विंडोज 10 करके ऐसे कुछ आएगा। ओके Rohit, speak in English. Actually, Rohit, Christian, I've already informed that this webinar is Hindi based. This is our first webinar which is Hindi based. Okay, so I'll try my best to speak some English in this. Okay, so I need to make sure that this is fully Hindi. So, यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे तो काली लिनक्स का एक ऑप्शन है, काली लिनक्स का एक ऑप्शन है और एक एडवांस ऑप्शन आता है। ओके तो हैकर्स लोगों का एक ट्रिक होता है जिसमें काली लिनक्स को ये मतलब इसको भी हम लोग बैक एंड डेवलपिंग ऑप्शन का बोल सकते हैं। ठीक है, अभी जो भी चीज होते हैं ना, अभी जैसे कि अगर कोई पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने जाए तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग में काफी सारे अटैक्स आते हैं, जैसे कि एक्सएसएस आते हैं, एसक्यूएल आते हैं। ठीक है, मेरा फेवरेट सीएसआरएफ आता है। ठीक है, वो सब जो होता है ना वो सब बैक एंड ऑप्शन से होता है। ठीक है, रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करके उसके बैक एंड के रिक्वेस्ट को फॉर्ज करके, ठीक है, उसका रिक्वेस्ट चेंज करके वैसा होता है। सो यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर भी हम लोग को बैक एंड का फायदा उठाना है। ठीक है, तो एडवांस ऑप्शंस के अंदर एक और ऑप्शन आता है जिसमें काली लिनक्स का एक नॉर्मल ऑप्शन आता है, नॉर्मल बूटिंग, एक आता है रिकवरी मोड वाला बूटिंग। और जितने भी पहले प्रीवियसली मतलब नए अपडेट्स किए रहोगे तो उसका एक एक करके नीचे नीचे आता रहता है। ठीक है, तो एडवांस ऑप्शन में एक जो फर्स्ट ऑप्शन होता है जो नॉर्मल बूटिंग के अंदर हम लोग को उसमें ई लेटर प्रेस करने पे हम लोग को एक ऐसा स्क्रीन मिलता है जिसमें हम लोग अंदर के बैकग्राउंड को कोड को कस्टमाइज कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे थर्ड लास्ट लाइन में, ये थर्ड लास्ट लाइन में थर्ड लास्ट वर्ड से ये RO क्वाइट स्प्लैश लिखा हुआ है। ठीक है, अभी हैकर्स जो है वो कुछ चेंजेस करते हैं, RO को RW करते हैं और वगैरह वगैरह। ठीक है, कोड नहीं होता एक्चुअली, वो कुछ मतलब कोई रूट फोल्डर को एक्टिवेट करते हैं कोई और प्रोसेस के पहले। ओके तो यहाँ पे रूट परमिशन हम लोग को बिना लॉगिन के मिल जाता है। रूट परमिशन मतलब हम लोग कोई भी परमिशन यूज कर सकते हैं, जिसके एडमिन प्रिविलेजेस कौन सा भी यूजर को निकाल सकता हूँ। एक बार यूजर बन गए तो बस और कुछ नहीं चाहिए होता। यहाँ तक कि हम लोग अगर कोई पेन टेस्टिंग हो या तो हैक द बॉक्स हो, ओके हैक द बॉक्स में भी हम लोग को पहले रूट यूजर लेके हम लोग को सर्च आउट करना पड़ता है। तो इसमें हैकर क्या करता है कि इन तीन लेटर्स, तीन वर्ड्स को चेंज करता है और वो तुम्हारे रूट यूजर के अंदर एक्सेस ले लेता है। ओके अभी हम लोग का एक ही वे है इसको रोकने का, जैसा मैंने बताया डिसेबलिंग ऑफ ग्रब बूट ऑप्शन। ओके पहला जो लिनक्स का एक ही सिंपल सा है, ग्रब हाइफन कस्टमाइजर पे जाके आराम से डिसेबल कर सकते हैं उसको। ओके और जो तीसरा ऑप्शन है जो मैंने बताया था हार्ड ड्राइव इंक्रिप्शन, एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब कौन सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम होने दो, बस तुमको लैपटॉप चाहिए। ठीक है, मेरे को ये बात काफी अच्छी लगती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम वाले बैकएंड को इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन जो लैपटॉप्स वाले जो हार्डवेयर मैकेनिक्स होते हैं, जो हार्डवेयर इंजीनियर्स होते हैं, वो काफी बैकएंड के ऊपर ध्यान देते हैं। तो उन्होंने भी इसमें एक सिक्योरिटी मेजर डाल के रखा हुआ है।
ठीक है, वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। तो जो थर्ड फाइनल ऑप्शन आता है हमारा, वो है हार्ड ड्राइव एनक्रिप्शन। ओके, अभी एनक्रिप्शन दो टाइप्स के होते हैं, दो अलग अलग। ओके, एक एनक्रिप्शन होता है कि अगर तुम्हारे पास 15 लाइन का कुछ टेक्स्ट फाइल है, ठीक है, वो अगर एनक्रिप्शन यूज करके वो एक सिंगल लाइन में कर देगा, उसमें लेटर्स, नंबर्स, हायर केस लेटर्स, लोअर केस लेटर्स, सिंबल्स, अलग अलग टाइप के होते हैं। लेकिन जो सेकेंड टाइप का एनक्रिप्शन है वो है सिक्योरिटी, कोई भी एक चीज को लॉक करना। ओके, अभी इसमें हम लोग कैसे क्या सीखेंगे कि अभी जो हमारा जो सिस्टम्स है, अभी मैंने ये चलाया है, पीपीटी चला है, जो पीपीटी है मेरा वो मेरे काली लिनक्स पे है। काली लिनक्स जो है मेरे हार्ड ड्राइव पे बूटेड है। ओके, अगर मैंने हार्ड ड्राइव को बूट किया, अपना हार्ड ड्राइव को अगर मैंने लॉक कर दिया, परमानेंट लॉक, एकदम परमानेंट नहीं, टेम्पररी लॉक, ठीक है, क्योंकि मेरे पास तो पासवर्ड होगा उसका। अगर मैंने टेम्पररी लॉक किया उसको, तो ऐसा कोई हैकर नहीं है जो वो क्रैक कर सके हार्ड ड्राइव इंक्रिप्शन को। तो मैं आगे जाके आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा एक स्टोरी के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को वो स्टोरी बताना है, स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। उसका नाम कुछ था, एक मिनट, ओके, उसका नाम था वॉर्मर। वॉर्मर करके एक हैकर था जो 2012 का है, उसका असली नाम फिगेनियो अकोवा है। ओके, वो मतलब काफी ऐसा, मतलब काफी रिक्वेस्टेड हैकर था। मतलब जो बुरे लोग होते हैं, ओके, जो बुरे लोग होते हैं उनके लिए, मतलब ये एक हेल्पर था, ये एडमिन था बुरे लोगों के लिए। तो ये क्या करता था, ये जो है, ये कोई भी वेबसाइट हैक किया, कोई भी सिस्टम हैक किया, तो ये क्या करता था कि ये अपनी गर्लफ्रेंड का एक न्यूड टाइप फोटो लेके उस पे, मतलब एक पेपर से प्रिंटेड लिखा होता था कि हाय दिस इज वार्मर और दिस हैज बीन हैक्ड करके। ओके, तो वो अपनी गर्लफ्रेंड का यूज करता था ये सब पोस्ट करने के लिए वेबसाइट्स के ऊपर। ओके, तो अभी यहाँ पर मेरे को जानना है कि कितने आईफोन यूजर्स है और कितने लोग को लगता है कि आईफोन काफी सेफ है, ऐसा, मतलब रेज हैंड्स या कुछ कर सकते हो तो। ऐसा मतलब ऑलमोस्ट, तो अराउंड लाइक 20 to 30 यहाँ पर होंगे जो आईफोन यूजर्स होंगे। ओके, अभी लोगों को लगता है कि भाई आईफोन जो है वो मतलब इतना सिक्योर है, इतना सिक्योर है कि कभी उससे कुछ डेटा लीक नहीं हो पाएगा। लेकिन ये काफी गलत बात है। मैं बोलूँ तो इमेज के सेक्शन में, ठीक है, इमेज के सेक्शन में अगर देखा जाए तो एंड्रॉयड ज्यादा सेफ है। अभी लोग पूछेंगे कैसे और क्यों, ठीक है। अभी जो आईफोन यूजर्स है उनको पता है कि जब वो फोटो खींचने जाते हैं तो उनका जीपीएस का परमिशन मांगता है। ओके, जीपीएस परमिशन मांगने के बाद वो फोटो के अंदर वो मेटा डेटा छोड़ देता है। ये मेटा डेटा क्या होता है? मेटा डेटा मतलब अभी कोई भी हम लोग ने सिस्टम लिया, समझो मैंने लैपटॉप लिया एक, तो लैपटॉप के पीछे के तरफ उसका आईएमईआई नंबर रहेगा। ओके, आईएमईआई नंबर रहेगा, फिर उसका मॉडल नंबर रहेगा। ओके, मॉडल नंबर के थ्रू मतलब काफी हेल्प हो सकते हैं हम लोग, उसका आउटलाइन या इनलाइन डेवलपिंग मोड हम लोग चेक कर सकते हैं कि कैसा डेवलप हुआ है, इसमें क्या सिक्योरिटी फ्लॉज है। ओके, तो उसने क्या किया था, वो जो वार्मर था उसने अपने आईफोन से अपनी वाइफ का मतलब अपनी गर्लफ्रेंड का फोटो खींचा था, और उसने वो आईफोन वाला फोटो को, उसने आईफोन वाला फोटो को उसने वेबसाइट पे डाल दिया था, ना कुछ मेटा डेटा निकाले। मेटा डेटा जैसे मैंने बताया, मेटा डेटा के अंदर अभी आईफोन में क्या होता है, अभी अगर तुम नॉर्मल फोन से व्हाट्सएप, अपना जो व्हाट्सएप वेब होता है, अगर मैंने कोई फोटो क्लिक किया और फोटो मैंने शेयर कर दिया नॉर्मल व्हाट्सएप पे, ओके, नॉर्मल व्हाट्सएप पे शेयर करने के बाद जो मेटा डेटा है वो व्हाट्सएप क्या करता है, वो डिलीट कर देता है। ओके, तो मतलब कुछ डेटा बचता नहीं है अंदर, सिर्फ उसका साइज लिखा होता है, पिक्सल्स कितना है सिर्फ वो ही लिखा होता है। एक बार ट्राई करना। ओके, तो वैसा ही है। तो लेकिन आईफोन में कैसा है कि आईफोन में तुम लोग कुछ भी शेयर करने जाओ तो उसका डेटा जो है वैसा का वैसा ही रहता है। ओके, डेटा जो है उसका अंदर का चेंज नहीं होता, यहाँ तक कि उसका जीपीएस कोऑर्डिनेट्स भी नहीं निकलता। ओके, तो इसने क्या किया, इसने फोटो डाला, जब अपलोड किया तो अपना साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स को पता चला कि हाँ भाई ये हैकर है, ये ऐसा गड़बड़ कर रहा है।
तो इन लोग को था कि यार कैसे रोके। तो ऐसा मतलब काफी स्मार्ट हैकर्स होते हैं, लेकिन ऐसा कभी कभी कुछ एक्सेप्शनली स्मार्ट होते हैं। ठीक है, अभी जो बाकी हैकर्स है, 5 लोगों में से जो 4 लोग हैं वो अंदर के चीजों को देखेंगे, लेकिन एक हैकर हमेशा ऐसा होता है हर एक ग्रुप में, जो बाहर के चीजों को पहले रेक्टिफाई करेगा कि कैसे काम कर रहा है। ओके, तो वो हैकर ने क्या किया, वो जो साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर था, उसने क्या किया कि उसने वो जो पर्टिकुलर फोटो था वेबसाइट में, उस फोटो से मेटा डेटा कलेक्ट किया। और अनफॉर्चुनेटली जब मेटा डेटा कलेक्ट किया, उसका जीपीएस कोऑर्डिनेट्स था। और सबसे बुरी बात तो ये थी कि जो फोटो खींचा था उसने अपनी गर्लफ्रेंड के घर से खींचा था। तो इसका काफी बुरा दुख हुआ मेरे को कि मतलब लड़के के चक्कर में लड़की भी गई। कोई बात नहीं, ऐसा होता है प्यार के चक्कर में। ठीक है, तो उसने क्या किया, वो मेटा डेटा निकाला, तो जीपीएस कोऑर्डिनेट्स के थ्रू उसको परफेक्ट लोकेशन मिला। ठीक है, परफेक्ट लोकेशन मिला और लोग सीधा घर पे पहुंचे। उसके घर पे जाते तो उसकी गर्लफ्रेंड रहती है, तो उसके गर्लफ्रेंड से पूछताछ करते हैं, तो बोलते हैं हाँ ये मेरे बॉयफ्रेंड ने डाला था। ठीक है, ये वो। तो भाई अभी लड़कियों को अब जान अपनी ज्यादा ही प्यारी हो जाती है। ठीक है, अभी लड़कियां अपनी जान बचानेंगे पहले, फिर बाद में लड़के का देखेंगे। इसलिए ऐसा पढ़ो मत यार, ऐसा मतलब अगर हैकर हो तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। ओके, सो अभी इसमें क्या हुआ था, ये लोग घर पे पहुंचे तो लड़की ने लड़के को कॉल किया, जो हैकर था उसको कॉल किया, बोलते हैं यार प्लीज कैन यू प्लीज कम होम। ठीक, बोलता है ठीक है। ठीक है, तो वहां से इसको पकड़ा, पुलिस स्टेशन लेके आए। अभी उसका सिस्टम इन लोग को मिल गया। ठीक है, अभी आता है मेन पॉइंट। अभी सिस्टम इन लोग जैसे ही ओपन करते हैं, इन लोग को सिस्टम में दिखता है भाई, जैसे ही विंडोज का अपना जैसे पावर बटन दबाते हैं, ये तो सीधा पासवर्ड पूछता है। ठीक है ना, कंपनी का लोगो कुछ बताता है, जैसे ही पावर बटन दबा 1 सेकंड के अंदर एक पासवर्ड का प्रॉम्प्ट देता है। पासवर्ड नहीं डाला तो दूसरा कुछ फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन नहीं है इसमें। इन लोग सोचे 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 क्या करूं क्या करूं, तो इन लोग को वे मिल गया पासवर्ड क्रैक करने का। उन लोग को मारे थोड़ा, वो हैकर को मारे। लेकिन मारने से भी वो बंदे ने नहीं बोला था, क्योंकि जो सीक्रेट डेटा काफी था उसमें था, मतलब पीसी में था उसके। ओके, तो उसके बाद वही वो जो एक्सेप्शनल हैकर था उसने क्या किया, उसका तो काम हो गया। अभी दूसरा एक और हैकर था जो मेरे जैसा हार्डवेयर हैकर था। ठीक है, हार्डवेयर बोलो सॉफ्टवेयर बोलो, जिसको ब्रूट फोर्सिंग, अभी हर एक ग्रुप में 5 जन का ग्रुप है, एक में तो हो गया मतलब ऐसा मतलब जासूसी करने वाला। ठीक है, जो बाहर की चीजों को पहले देखता है। और एक हैकर हो गया जो मतलब जिसको ब्रूट फोर्सिंग काफी ज्यादा पसंद है। ब्रूट फोर्सिंग का मतलब है कि सोशल मीडिया हैक करना सबसे ज्यादा पसंद है। हर एक ग्रुप में ऐसा कोई ना कोई होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लेंगे वो सोशल मीडिया वाले का। ठीक है, तो वो हैकर ने क्या किया, एक पासवर्ड लिस्ट बनाया मस्त सा। ठीक है, उसमें जो भी उसके क्लोज वाले थे, ठीक है, और उसका बर्थ डेट, उसने एक पासवर्ड लिस्ट बनाया। तो एक एक करके मैनुअली करता गया। ठीक है, और इसमें एक और इशू होता है कोई कोई सिस्टम्स में, अगर तुम लोग रबर डकी डाले, ठीक है, रबर डकी हो, अभी रबर डकी क्या है, एक बैड यूएसबी का टाइप है। और बैड यूएसबी क्या है, बैड यूएसबी कैसा है, जो हैकर्स प्रोग्राम करते हैं अपने तरफ से, वो एक कीबोर्ड के तरह काम करता है। ठीक है, मेरे को पता है यहाँ पर काफी एक्सपर्ट हैकर्स है, ये उनके लिए है जिनको नहीं पता। सो प्लीज कमेंट सेक्शन में या अपना मैसेजिंग सेक्शन में प्लीज कुछ ऐसा मतलब भर मत देना, आई एम सॉरी। तो वो जो सिक्योरिटी रिसर्चर था, उसने एक पासवर्ड लिस्ट बनाया और उसका पासवर्ड मिल गया उन लोग को। ठीक है, अरे मैं जैसा बता रहा हूँ, मैंने तुम लोग को बोला कि ये जो हार्डवेयर सिक्योरिटी वाला है, मतलब ये जो हार्ड ड्राइव इंक्रिप्शन वाला है, वो कोई नहीं क्रैक कर सकता अनलेस एंड अनटिल तुम लोग का पासवर्ड काफी ज्यादा स्ट्रांग है। ओके, तो अगर पासवर्ड अच्छा ज्यादा स्ट्रांग है तो कोई हैक नहीं कर सकता। तो यहाँ पर उसने जो पासवर्ड रखा तो काफी ज्यादा सिंपल रखा था। उसकी एक है ना फेवरेट बिल्ली थी जिसका नाम कैंडी था। तो कैंडी @21 जो वॉर्मर का बर्थ डेट था, उसने कैंडी C21 रखा था। क्रैक किया और लिनक्स के लॉगिन पेज पे आए उन लोग। लिनक्स के लॉगिन पेज से उन लोग ने आराम से उन लोग का जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स था डाल के
सब खत्म कर दिए। मतलब जैसा मैंने अभी लिनक्स का बताया था, वही सेम स्टेप उन लोगों ने किया और बिना डेटा लॉस के उन लोगों को सारा कुछ अच्छे से हो गया। ओके, फिर इसी तरीके से वो फंस गया बेचारा, ठीक है। वो अगर वो पकड़ा नहीं जाता, अगर कुछ अच्छा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखता, तो उसका अंदर का मतलब जो मतलब ब्लैक फुटप्रिंट्स है, मतलब जो सिक्योरिटी अनएथिकल वेज थे उसके हैक करने को, किसी को पता नहीं चलता था और ना ये स्टोरी बाहर आता था। ओके, तो यहाँ पर हम लोग अगर सिस्टम, अभी अभी हम लोग को मेन टॉपिक आता है हार्ड ड्राइव को कैसे इनक्रिप्ट करते हैं। ओके, तो कुछ मेन स्टेप्स है, मेरे को चाहिए कि आप लोग ये भी लिख के लेने की भी जरूरत नहीं है, ये काफी सिंपल सा स्टेप है। ओके, पहले तो सब सच्ची बात, सिस्टम को शट डाउन करना पड़ेगा। ओके, शट डाउन करने के बाद जैसे हम लोग सिस्टम ऑन करते हैं तो हम लोग को कंपनी का लोगो आता है, ठीक है। अभी डेल का कंपनी हो तो डेल का लोगो आएगा, लिनोवो हो तो लिनोवो का लोगो आएगा, ठीक है। अभी वहां पर लोगों को पता है कि बायोस ऑप्शंस में कैसे जाते हैं, और ब्रू अभी F2 का पता फंक्शन पता है लोगों को, और F12 का फंक्शन पता है। F2 वाला जो फंक्शन है वो बायोस ऑप्शंस खुलता है, ठीक है। और जो F12 है वो बूट ऑप्शंस खुलता है, ठीक है। बायोस ऑप्शंस में जाने के बाद, बायोस मेन्यू में जाने के बाद एक ये है एक ऑप्शन है जिसमें सिक्योरिटी करके लिखा होगा। सिक्योरिटी में जाने के बाद एडमिन पासवर्ड, ओके। एडमिन पासवर्ड में अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि राइट साइड वाले सेक्शन में एंटर द ओल्ड पासवर्ड, एंटर द न्यू पासवर्ड, ठीक है, क्योंकि मैंने काफी शुरू से लगा के रखा था। ओके, तो यहाँ पर नया पासवर्ड सेट करने को मिलेगा। ओके, फिर एडमिन पासवर्ड सेट करने के बाद फिर पूछा है कि सिस्टम पासवर्ड क्या सेट करना है। अभी एडमिन पासवर्ड और सिस्टम पासवर्ड में फर्क क्या है, दोनों अलग अलग सेक्शन क्यों बने? ये लोग ऐसा मर्ज करके भी तो बना सकते थे, लेकिन नहीं, ठीक है। अभी जैसे मैंने विंडोज में बताया था कि जहां पर से हम लोग रीनेम कर सकते हैं, कि मतलब लॉगिन के पहले, ठीक है, लॉगिन स्क्रीन है उसके पहले भी हम लोग रीनेम कर सकते हैं फर्मवेयर वाला ऑप्शन यूज करके। ओके, तो वहां से मतलब वहां से कुछ भी चेंजेस होएगा, मतलब वो एडमिन चेंजेस होगा। वहां पर तुम लोग को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि हाँ भाई मैं एडमिन हूँ, ठीक है, वो बताने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो वैसे ही लिनक्स में होता है। एडमिन पासवर्ड क्या होता है, जैसे कि सिस्टम चालू किया, F12 या F2, ओके, F12 और F2 में एडमिन पासवर्ड सेट होता है। कि जैसे ही सिस्टम चालू किया और तुम लोग बायोस ऑप्शंस चाहिए तो F2 दबाना पड़ेगा, ठीक है। F2 जैसे ही दबाए तो एडमिन पासवर्ड पूछेगा, ना कि सिस्टम पासवर्ड। और जो सिस्टम पासवर्ड है वो नॉर्मल पासवर्ड है, मतलब जो नॉर्मल जैसा बूटिंग होता है ना, हाँ भाई पावर बटन दबाया, ठीक है, फिर पूछा पासवर्ड डाल दो, फिर नॉर्मल बूट हो गया लॉगिन स्क्रीन पे। यही डिफरेंस है सिस्टम पासवर्ड और एडमिन पासवर्ड में। तो मेक श्योर करना कि एडमिन पासवर्ड और सिस्टम पासवर्ड सेम ना रखो। अगर सेम रखना भी है तो इतना ज्यादा टफ रखो कि हैकर्स को मतलब तुम लोग के मतलब उसके बच्चे के बच्चे को भी हैक करते रहना पड़ेगा, ठीक है। मेरा तो सेल्फ पासवर्ड इतना ऐसे ही है, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है कि क्या ही बताऊं मैं, ठीक है। मेरा काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड है। ओके, तो यहाँ पर अभी हम लोग देख रहे हैं कि सिस्टम पासवर्ड पे भी आ रहा है। ओके, सिस्टम पासवर्ड मतलब जो नॉर्मल बूटिंग का पासवर्ड है। ओके, तो जैसी अभी नेक्स्ट स्टेप हम लोग का होगा कि अभी हम लोग ने सेटअप कर दिया, पावर बटन दबाए, ठीक है, सब रीसेट सब हो गया। फिर जब यहाँ पर आता है हम लोग का जो सिक्योरिटी का पासवर्ड डालने वाला स्क्रीन, जैसे सिस्टम चालू करेंगे तुम लोग को डेल अभी मतलब लोगों के पहले तुम लोग को ये स्क्रीन दिखाएगा कि पासवर्ड डालो, या तो खुलेगा ही नहीं। और इसमें ये काफी अच्छी बात है, ठीक है। ये इसमें एक प्रोस भी है, एक कॉन साइड भी है, ठीक है, दोनों बताना चाहता हूँ। इसमें प्रोस पॉइंट क्या है, प्रोस मतलब अच्छी बात क्या है, अच्छी बात ये है कि इसको मतलब कोई भी तरीका नहीं है क्रैक करने का, इसमें ना फॉरगेट पासवर्ड है ना कुछ है। इसमें सिर्फ कीबोर्ड से तुम डाल सकते हो, ना कि तुम लोग को माउस का ऑप्शन आता है, ठीक है। सिर्फ इसमें कीबोर्ड अटैच करने का वो भी मैंने अभी तक ट्राई किया नहीं हूँ, ठीक है। शायद रबर डक्की से क्रैक हो जाए या तो डिजी स्पार्क से क्रैक हो जाए। तो ये कुछ वेज है अपने सिस्टम्स को सिक्योर करने का। और ये यहाँ पर ये जो स्क्रीन दिख रहा है, यहाँ पर पासवर्ड डालना पड़ता है, पासवर्ड डालेंगे फिर उसके बाद तुम्हारे डेल का या लिनोवो का या सैमसंग का या एप्पल का कौन सा भी, ठीक है, कौन सा भी जो भी ऑपरेटिंग जो भी कंपनी है उसका लोगो आता है। और फिर वहां पर लोगो आने के बाद लॉगिन हम लोग आराम से कर सकते हैं।
और यहाँ पर मेन लॉगिन तब होता है। अच्छा देखो, अभी तुम लोग पूछोगे कि पावर बटन दबाने के बाद अगर हम लोग क्विक F2 और F12 दबाएंगे तब काम करेगा? नहीं, क्योंकि अभी काली लिनक्स का देखा रहेगा, जब काली लिनक्स बूट होता है तो एक ड्रैगन आता है मस्त सा, ठीक है, मतलब काफी अट्रैक्टिव सा आता है ड्रैगन। ठीक है, अगर वही ड्रैगन के आते टाइम अगर हम लोग 0 दबाए तो हम लोग को पता चलेगा कि उसके बैकग्राउंड में क्या प्रोसेस रन कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भाई हम लोग कुछ बटन दबाएंगे तब वो प्रोसेस होगा, वो अपना नॉर्मल प्रोसेसिंग में चलता रहता है। वैसा ही कंपनी लोगों के साथ होता है। तो जब कंपनी लोगो सामने हम लोग को नॉर्मल सा दिखता है, लेकिन उसके पीछे भी एक कोड रन होता है। ठीक है, अगर F2 दबाएंगे तो वो बायोस ऑप्शन ट्रिगर करेगा, F12 दबाएंगे तो वो बूट लोडर का अपना बूट मेन्यू का ऑप्शन ट्रिगर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ही अभी पता है कि मैंने ज्यादा ही टाइम ले लिया है, तो यहाँ से मेरे को चाहिए कि आगे का जो सेशन है वो कनिष्क ले। ओके, सो कनिष्क प्लीज टेक योर सीट। Hi everyone, Kanishk here. तो आज का टॉपिक है फिशिंग सिक्योरिटी। एज काफ़ी ज़्यादा टाइम आपका स्पेंड हो चुका है। बेसिकली फिशिंग सिक्योरिटी में दो डिविजन थे, एक बेसिक फिशिंग अटैक्स थे और एक एडवांस फिशिंग अटैक्स थे। बट आई थिंक ड्यू टू टाइम हम लोग पूरा कवर नहीं कर पाएंगे, बट डेफिनेटली विल कवर द बेसिक फिशिंग अटैक्स, ठीक है, एंड विल बी कवरिंग द एडवांस फिशिंग अटैक्स इन द नेक्स्ट वेबिनार। ओके, तो आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन। Actually, you can stop presenting the screen. I'll just share. Okay, so everything is visible, right? Okay, everything is visible. Fine. So the topic that I'm going to cover in this basic phishing security is about what is phishing, phishing attacks होती क्या है, phishing attack से क्या क्या details fetch होते हैं, what are the details that can be fetched after phishing attack, और एक what can a cyber criminal do with the data, एक data के साथ कर क्या सकता है साइबर क्रिमिनल आफ्टर फिशिंग। ठीक है, व्हाट इज मास्किंग, मास्किंग क्या होती है, मास्किंग कैसे प्रिवेंट की जाती है, मास्किंग को कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है, आई विल बी टेलिंग यू ऑल दैट। And the next one is link redirection. This is actually a lot of people know this, but still there are a lot of cases which I've solved. People don't know about this. So I have decided it's for people who actually don't know. I'm sorry, a lot of people know this. So it's for newbies. It's not for everyone. And next thing is about Instagram phishing attacks. Okay. And phishing attacks after your Instagram is hacked. How do you recover? How can a cyber criminal be caught आफ्टर ही सेंड्स अ फिशिंग लिंक? एक फिशिंग लिंक भेजता है एक साइबर क्रिमिनल आपको, आप विक्टिम बन जाते हो, आप डिटेल्स डाल देते हो, बट अब आपको वो साइबर क्रिमिनल को पकड़ना है। वो किस तरह से होता है, वो लॉजिक बताऊंगा मैं किस तरह से होता है। आई एम नॉट गोना प्रैक्टिकली शो दैट, बट डेफिनेटली आई विल बी टेलिंग यू द लॉजिक किस तरह से काम करता है। अल्फाबेटिकल डिफरेंस, दिस टॉपिक एक्चुअली कम्स अंडर एडवांस फिशिंग। अल्फाबेटिकल डिफरेंस क्या होता है, वो किस तरह से फिशिंग लिंक्स दो तरीके दो सेम फिशिंग लिंक रहता है बट दे विल बी अल्फाबेटिकल डिफरेंस, जिससे वो फिशिंग लिंक ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है, ज्यादा सिक्योर बनता है फिशिंग, और हमको जो साइबर क्रिमिनल रहता है उसको पकड़ने में दिक्कत होती है। और देन कम्स द प्रैक्टिकल सेशन। प्रैक्टिकल सेशन में होगा फिशिंग लिंक्स, आई मेड फ्यू फिशिंग लिंक्स, और ये रीडायरेक्शन कैसे किए जाते हैं, और अल्फाबेटिकल डिफरेंस ये भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो लेट्स फर्स्ट, एक्चुअली थियरी इज इंपॉर्टेंट, तो मैं सोच रहा हूँ पहले थियरी आपको बता दूं। ठीक है, थियरी बताने के बाद मैं आपके प्रैक्टिकल पे जाऊंगा। ठीक है, तो व्हाट इज फिशिंग? देखो सिंपल सी बात है, you get a link, there is something else which is binded with the link. Let's suppose there's a code, or there's a code, or there's another website malicious, there's a malicious website which is linked to the phishing link to a URL. ठीक है, that is phishing. Phishing attacks होती क्या है? It's a simple thing. I'm making it short. I'm not going in much I'm not taking it in a much deeper way because you people don't have much time. Okay, so this was just about phishing. Just in a practical way, I'll be showing you how phishing is performed also. Then coming to the second point, what details can be fetched using the phishing link? What a cyber criminal can do with the data. तो फिशिंग लिंक से होती क्या है? लेट्स सपोज समवन सेंड्स यू अ फिशिंग लिंक। ठीक है, तो व्हाट डू यू थिंक डेटा, व्हाट काइंड ऑफ डेटा कैन बी फेच? व्हाट डू यू थिंक? It the data can be an IP address, it can be a phone's IMEI number, it can also be a MAC address,
Okay, chalo, let's not get much deeper into this. Why is this important? What can IP address do? Okay यार, ये इसने फिशिंग लिंक की मेरा IP एड्रेस ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, मेरा IP एड्रेस से क्या ही होता है, IMEI नंबर से क्या ही होता है, MAC एड्रेस से क्या ही होता है. Okay, let me tell you the importance, okay, of IP address. Number one, what is IP address? IP address basically आपका फोन का एक ऐसा एड्रेस रहता है. IP address are segregated into two. One is public IP, one is private IP. ठीक है. तो लेट्स सपोज मैं सिंपल भाषा में बताता हूँ मैं कैसे हैक किया था फोन. ठीक है. आई कैन हैक योर फोन ओनली बाय यूजिंग IP एड्रेस. Your IP address, basically when you whatever you hack, you basically need to know, you basically need to gather information पहले गैदर करनी पड़ती है हमको. हैकिंग परफॉर्म करने से पहले फुटप्रिंटिंग करनी पड़ती है. फुटप्रिंटिंग में IP एड्रेस इज मस्ट यानी मस्ट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है IP एड्रेस. ठीक है. और ये फिशिंग लिंक से जनरेट हो रही है, फिशिंग लिंक से आपकी IP एड्रेस हो रही है, तो देयर आर हाई चांसेस you can be hacked only using phishing link. IMEI number, you know what is IMEI number used for? IMEI number basically phone trace करने के लिए होता है. ठीक है. Let's suppose you get an IMEI number and the cyber criminal knows the method how to trace an IMEI number. Basically लोग बोलते हैं कि ISP service providers can only track. But what if the cyber criminals is much more clever than the ISP service providers? He can also make a software. वो भी एक सॉफ्टवेयर बना सकता है, वो भी ट्रेस कर सकता है IMEI नंबर को. तो बेसिकली अगर आप अपना लोकेशन ऑफ भी करते हैं, यू टर्न ऑफ योर लोकेशन of your device, even after turning off your device location, you can be traced. आप ट्रेस हो सकते हो, आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कितनी देर आपका डिवाइस उधर तक A to Z मॉनिटर होता है. और मैक एड्रेस होता है. मैक एड्रेस बेसिकली आपका हार्ड डिस्क यानी कि फोन का स्टोरेज. लेट्स सपोज फोन का स्टोरेज है, फोन का स्टोरेज एक हार्ड डिस्क होता है. ठीक है. हार्ड डिस्क का एड्रेस होता है, हर एक चीज का एड्रेस होता है, एक रिकग्नाइजेशन होता है. ठीक है. तो उसे मैक एड्रेस कहते हैं. मैक एड्रेस में होता क्या, मैक एड्रेस से क्या होता है. ठीक है. लेट्स सपोज तुम्हारा मैक एड्रेस है, तुम्हारे मैक एड्रेस में डेटा जाता है. लेट्स सपोज मैंने तुमको एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा, वो जो मैसेज है तुम्हारे मैक एड्रेस यानी कि तुम्हारा हार्ड डिस्क ड्राइव में चले गया. ठीक है. तो मेरे को भी वो मैसेज चाहिए. ठीक है. एंड वंस आई गेट योर मैक एड्रेस, मैं तुम्हारा मैक एड्रेस क्लोन कर लूंगा, एक स्पूफ मैक एड्रेस बताऊंगा. ठीक है. तो बेसिकली दो मैक एड्रेस बन जाएंगे. एक मैक एड्रेस तुम्हारे मैक एड्रेस में यूज करूंगा, जो डेटा तुम्हारे पास जा रहा है ना हार्ड डिस्क में, वो डेटा मेरे पास भी आएगा. मैक एड्रेस इज एक्चुअली रियल पावरफुल, इट्स इवन डेंजरस. Coming to the point of masking होती क्या है? I have given you an example here. ठीक है. This is the actual link, youtube.com. ठीक है. I have converted this link from above. एक ऊपर का एक लेयर बना दिया मैंने लिंक का, which is instagram.com. So it's like whenever you click on instagram.com, let's suppose it is a phishing link I have made. Okay. This is the masked phishing link I have made. It will take you to youtube.com. आपको youtube.com में लेके जाएगा. ये प्रैक्टिकली मैं दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में. जस्ट वेट, एज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, मैं जल्दी थोड़ा जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है. तो ये मास्किंग के बारे में, मास्किंग एक ऊपर से एक डुप्लीकेट फिशिंग लिंक बनाता है. वो एक्चुअल लिंक नहीं होता, वो कहीं और रीडायरेक्ट हो जाता है. ठीक है. तो एंड डिटेक्टिंग फिशिंग लिंक रीडायरेक्शन फॉर न्यूबीज, अगेन ये चीज रीडायरेक्शन होता है. बेसिकली आप कहीं भी क्लिक करते हो, लेट्स सपोज मैं न्यू टैब ओपन करता हूँ थोड़ी देर में, ये प्रैक्टिकली मैं दिखाऊंगा आपको. आप बस आपको कुछ नहीं करना है. इफ यू हैव अ लैपटॉप, यू जस्ट हैव टू कॉपी द लिंक एंड यू विल बी गेटिंग द लिंक. कहाँ रीडायरेक्ट हो रहा है एक्चुअली ये लिंक. ठीक है. आई मेड अ लिंक ओवर हियर, bitly एक्सेट्रा. ठीक है. अबाउट इंस्टाग्राम हैकिंग और फिशिंग अटैक्स. तो आई विल गो इन थियरी विद दिस. ये एक्सप्लेन मैं थोड़ा करता हूँ. ठीक है. आपका इंस्टाग्राम हैक हो गया. ठीक है. लेट्स सपोज देयर इज अ अटैकर जिसने फिशिंग अटैक की आपके ऊपर, फिशिंग अटैक की एंड यू आर हैक्ड. ठीक है. योर इंस्टाग्राम इज बीन हैक्ड. ठीक है. बट मेक श्योर आप 24 आवर्स के अंदर एक्शन ले सकते हो. यू कैन गेट योर अकाउंट बैक इवन इफ यू हैव चेंज्ड योर पासवर्ड, आईडी और पासवर्ड चेंज करने के बाद भी आप अपना अकाउंट ले सकते हो. यू नो व्हाई? उसने जो आपको फिशिंग लिंक भेजी होगी, लेट्स सपोज उसने कुछ फिशिंग लिंक भेज दी थी, कोई भी एक फिशिंग लिंक, लेट्स सपोज typeyou.com, ये एक फिशिंग लिंक थी एक्चुअली. ठीक है. ये फिशिंग लिंक उसने आपको भेज दी. ठीक है. ये फिशिंग लिंक उसने बनाई है. हमेशा याद रखना, हैकर कोई ना कोई गलती करता, कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ता है. तो उसने फिशिंग लिंक बनाई है, तो फिशिंग लिंक में कहीं ना कहीं तो बनाया होगा. उसके फिशिंग लिंक में कहीं ना कहीं IP एड्रेस छुपा होगा. मे बी आप नहीं कर पाते, बट साइबर सेल वाले डेफिनेटली कर पाएंगे, और काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हेल्प करते हैं ये सब चीजों करने के लिए. ठीक है. तो बट ये भी याद रखना, IP एड्रेस हर 24 आवर्स में चेंज होता है. तो मेक श्योर आप 24 आवर्स के अंदर एक्शन ले, अप्रोप्रिएट एक्शन ले लें, ताकि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट रिकवर हो सकता है. बेसिकली ये साइबर सेल आराम से कर सकती है.
if they want to. ठीक है, this is how your Instagram can be protected even after getting hacked. I mean recovered even after getting hacked. ठीक है, alphabetical difference, this comes under the part of advanced phishing. तो चलो मैं तुमको एक दिखाता हूँ. लेट सपोज मैंने एक लिंक बनाया है, फिशिंग लिंक है https:// इट इज, लेट सपोज वी मेक इट, देयर इज अ गूगल सपोर्ट, गूगल कस्टमर सपोर्ट है, मेरे को मेल करती है, ठीक है, दैट यू हैव टू रिकवर योर अकाउंट, प्लीज लॉग इन विथ योर जीमेल आईडी. ठीक है, gmail.com. ठीक है, ये एक्चुअल लिंक है, गूगल भेजती है. ठीक है, क्योंकि मशीन जनरेटेड होता है उधर से. गूगल के पास एक डेटाबेस होता है जहां से मशीन बनती है, मशीन अपने आप रीडायरेक्ट करके भेजती है. ठीक है, व्हेनेवर यू डू फॉरगॉट पासवर्ड. ठीक है, बट लेट सपोज मैं एक छोटा सा चेंज करूं, बहुत एक माइनर चेंज करूंगा, इट विल लुक डिट्टो सेम. लेट मी शो यू. https://gmail.com. इसमें अंतर नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे मेरे को फॉन्ट चेंज करना है इसका. ठीक है, ये ए लिखने के दो तरीके होते हैं. ये ओरिजिनल लिंक का ए होता है, ये मशीन ने जो ए बनाया ये वाला है, मशीन बनाया हुआ ए ऐसा लिखता है. ठीक है, बट द एक्चुअल ए होता है वो डिफरेंट होता है. आई मीन ये मशीन बनाया हुआ, ये ओरिजिनल लिंक होता है, ओरिजिनल लिंक का अल्फाबेट ऐसे होता है ए. ठीक है, लेकिन कुछ फिशिंग लिंक्स जब होते हैं उसमें ए, सिर्फ ए का एक अक्षर का अंतर होता है. देयर इज ओनली अ डिफरेंस बिटवीन अ वर्ड एंड दैट इज द फॉन्ट ऑफ द वर्ड. ठीक है, इवन दैट इज अ हाई रिस्क दैट कम्स अंडर एडवांस फिशिंग. आजकल के साइबर क्रिमिनल्स इज लाइक, is IP logger helpful for finding? Okay, I'll give you the answer for that also. ठीक है, तो cyber criminals can definitely use this trick. This comes under advanced phishing. Okay, you just have to make sure that this alphabets are looking same as the one which is machine generated alphabets have different font, and the phishing link which is generated had different fonts. ठीक है, the wordings are going to be same, gmail.com here also gmail.com, but the alphabet here सिर्फ एक alphabet का अंतर पड़ जाएगा, alphabet का font, the way it is the way it will be written is different. Okay, let's come to the practical point of view. ठीक है, a lot of people, I have made few phishing links. Okay, I'll be telling you about redirection here. What were the practical things I just had to connect? One was detecting a phishing link. Okay, so let's suppose I made this phishing link. Let me just share the screen. I'll just reshare the screen because one second, entire screen. I hope my screen is being shared. Okay, this is the wrong screen. One second. So you people are able to see this, right? Ashley, just browser, right, Ganesh? Ashley, just let me know, like मैं दूसरे टैब में जा रहा हूँ, उसमें थोड़ी दिक्कत प्रॉब्लम आ सकती है. ठीक है, तो Okay, मैं अभी टर्मिनल पे जा रहा हूँ. ठीक है, sure. इससे पहले बता देता हूँ. देखो मैंने यहाँ पे फिशिंग लिंक बनाई है, बिटली का एक फिशिंग लिंक बनाया है. ठीक है, आई एम जस्ट गोना कॉपी दिस लिंक, रीडायरेक्शन है ये. ठीक है, आई एम जस्ट गोना कॉपी दिस, आई एम गोना ओपन न्यू टैब. एशली न्यू टैब दिख रहा है? ओके, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने टाइप मार के एंटर नहीं मारना है, मेरे को एंटर नहीं मारना है. एंटर मारने से पहले मैं क्या करूंगा, इसको एनालाइज करूंगा. ठीक है, लिंक लेट सपोज मैं इधर डालता हूँ, गूगल पे डालता हूँ. ठीक है, ओह सॉरी, वन सेकेंड, ये आपको एक वीडियो पे रिडायरेक्ट किया. होल्ड अ सेकेंड, अब ये लिंक रिडायरेक्शन कैसे बनता है, लेट मी टेल यू. ठीक है, लेट सपोज तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया, मैंने एक यहाँ पे, ओके वन सेकेंड, इधर भी नहीं, आई विल शो यू अ नॉर्मल एग्जांपल. लेट सपोज बुक. ठीक है, वी गो टू बुक, सो देयर आर बुक स्टोर्स नियर मी, आई जस्ट गो टू क्लिक ऑन दिस बुक स्टोर. ठीक है, दिस इज अ लिंक, नॉट एवरी लिंक्स आर सेम, लेट मी फाइंड वन. ओके, तो मैंने बुक, विकिपीडिया दिख रहा है, राइट? बुक और विकिपीडिया का लिंक दिख रहा है, बट मेरा जो नीचे का जो टर्मिनल, मेरे स्क्रीन के नीचे एक बार देखो, https://en.wikipedia.org/wiki/book दिख रहा है. तो आपके क्लिक करने से पहले आपको दिख गया कि ये लिंक एक्चुअली कहाँ रिडायरेक्ट हो रहा है. ठीक है, तो बेसिकली कोई भी लिंक आता है ना, तो पहले आप क्लिक करने से पहले बस उसके ऊपर कर्सर रख दीजिए. कर्सर रखने से इधर ही नीचे, इधर जस्ट हैव अ लुक एट दिस एरो, इधर नीचे आपको रिडायरेक्शन का दिखा देगा. ठीक है, तो आपको फिर एनालाइज करना पड़ेगा ये लिंक सही है कि नहीं, इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा. गूगल इज ए बेस्ट फ्रेंड फॉर दिस. गूगल आपके लिए बहुत हेल्प करेगा ये सब रिसर्चिंग के लिए. ठीक है, ये लिंक रिडायरेक्शन था. आई नो इट वाज द बेसिक थिंग, काफी लोग को पता है, बट स्टिल कुछ लोग को नहीं पता है, उनके लिए था ये.
Okay, then the practical thing number 2 was phishing links. Okay, let me go to the terminal. I'll share my screen. I'll go to the terminal. Are you able to see my terminal? Yeah. Okay, so here there are few IP addresses. Okay, how important is it? I'll even be telling you that. Okay, so basically this is a phishing link. I've made a phishing link here, Instagram fake login page of followers. Okay, I just copy this link. I'll share my screen of this thing. I go to new tab. I just paste this. Okay, because my system has security, it will be asking me questions that, see, this link is getting redirected to this. It might be attempt, because my system is secured. I'm using a Linux system, but most probably you people might be using it on phones and all, right? Tunnel expired, no problem. Okay, let me go to masking directly then. मैंने क्या किया, ये लिंक है, ये एक्चुअल फिशिंग लिंक मैंने बनाया था इधर. होल्ड अ सेकंड, I'll again share. Sorry for this. इधर मैंने एक एक्चुअल फिशिंग लिंक बनाया. ये फिशिंग लिंक है http://getunlimitedfollowers for instagram-118/.ngrock.io. ये मैंने एक फिशिंग लिंक बनाया, ठीक है. अब मैं क्या करूंगा ना, ये फिशिंग लिंक तो यार पता चल जाएगा इसको http है, पहली बार सिक्योर प्रोटोकॉल नहीं है इसमें, तो कोई लॉगिन नहीं करेगा. और इसका गेट अनलिमिटेड फॉलोअर्स, ये कैसा लिंक है, और @ ऐसे जा रहा है, ठीक है. तो मैं क्या करूंगा ना, इस गेट अनलिमिटेड को ना instagram.com कर दूंगा, www.instagram.com से स्टार्ट करूंगा, ठीक है. Basically I'll overlap this link with another link, ठीक है. So for this I go to another console. I have overlapped it already. I have already overlapped it. ये देखो, ये मेरा link है, the link I showed you in the previous terminal. I know it might be a little complicated for people who don't know how to use the terminal and who have not seen the terminal before, but just focus on the wordings here. ये रहा link, actual link, ठीक है. actual link को मैंने क्या किया, मास्क कर दिया. मास्क करके मैंने ये बना दिया. देखो, इसका स्टार्टिंग क्या था, get-/get-unlimited-followers for Instagram, ऐसा था, राइट. तो मैंने इसको ना चेंज करके मैंने instagram.com कर दिया स्टार्टिंग से, https://instagram.com. आई हैव मेड दिस एज अ फिशिंग लिंक. लेट्स ट्राई. आपको याद है, थोड़ी देर पहले हमको एक रिजल्ट मिला था, शायद वही रिजल्ट मिल जाना चाहिए हमको. इट इज एक्सपायर्ड, टनल माइट बी एक्सपायर्ड, नो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट द रिजल्ट, द आउटपुट विच वी गेट शुड बी सेम. तो मैं फिर से न्यू टैब में जाता हूँ. पिछली बार अभी मैंने थोड़ी देर पहले फिशिंग लिंक की थी, उसमें टनल एक्सपायर्ड दिखा था. इसमें भी टनल एक्सपायर्ड दिखाना चाहिए. मैंने ओवरलैप किया, इसको मास्किंग कहते हैं. यस, आई वांट टू गो टनल एक्सपायर्ड. सो देखो, मैंने वो लिंक डाली थी, मैंने क्या डाली थी, इंस्टाग्राम की. जस्ट हैव अ लुक एट दिस. मैंने https://instagram.com/login ये डाली थी. instagram.com से मैंने लिंक बनाई थी मैंने. बट देखो कहाँ जाके एंड हुआ. ये एंड हुआ यहाँ पे, ये लिंक पे एंड हो गया. तो बेसिकली तुमको बुद्धू बनाने के लिए अटैकर्स क्या करते हैं, ये लिंक मास्क कर देते हैं. तो तुमको लगेगा ये तो इंस्टाग्राम का ही लिंक है डूड, मार देते हैं लॉगिन. ये एक चीज थी. It was mass phishing. So these were actually basic phishing securities. Okay, then the alphabet wala cheese, so I have told you people. And advanced phishing, I don't think it's been 1 hour. We have actually overcome 20 minutes. Okay, 20 minutes ज़्यादा हो चुके हैं. So I'll just have to end it. There's a bonus thing I would like to tell you people about artificial intelligence and machine learning. How is it going to help in cyber security? Let me give a small topic, a very small, for 2 to 3 minutes. AI and AI, only artificial intelligence. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे हेल्प करता है. लेट मी गो डाउन. ओके, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है पहले, ठीक है. लेट मी कवर द टॉपिक ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. होता क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? बेसिकली तुमको पता है, रोबोट्स वगैरह बनते हैं, ठीक है. एक ह्यूमन की तरह बात करते हैं. सिंपल वे में बता रहा हूँ, ह्यूमन की तरह बात करते हैं. रोबोट्स टॉक इन अ लैंग्वेज, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज. दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, ठीक है. तो हाउ इज दिस गोना हेल्प इन साइबर सिक्योरिटी? आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, यू यूज एवस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एनी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ठीक है. हाउ डज इट डिटेक्ट that this pen drive is malicious? It is not a good program in the pen drive, etc. ठीक है. It is because of artificial intelligence. This is how artificial intelligence is helping. I'm sorry. This is how artificial intelligence is helping
the improvement of cyber security in the upcoming future. ठीक है, तो artificial intelligence का ये use है. There are much more topics I had to actually cover in the, but due to lack of time I'll be covering it in the next webinar definitely. Okay, so there's one more topic actually. There's a database and URL redirection thingy. I would like Ashley to continue that. Ashley, you have that, right? Yeah, Kanish, can you please stop sharing your screen? Okay. Okay, so okay, so अभी जैसे कनिष्क ने बताया कि यूआरएल रीडायरेक्शन का कैसे एनालाइज करते हैं, ठीक है। अगर अगर कोई एक्सपर्ट से भी एक्सपर्ट हैकर हो, समझो कि कोई एकदम बड़ा ही तोप है हैकिंग में और उसने फिशिंग लिंक भेजा तो वो एनालाइज करने लायक नहीं है, ओके। तो एक ऑप्शन है जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि वो फिशिंग लिंक है या नहीं, ओके। ये शायद लोगों को पता हो, शायद नहीं पता हो, ओके। तो जब भी फिशिंग लिंक होता है, ठीक है, चाहे वो इंस्टाग्राम का हो, चाहे जीमेल, चाहे फेसबुक, कौन सा भी फिशिंग लिंक हो, तो अभी यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एग्जाम्पल इंस्टाग्राम का, ओके। तो सपोज कि हम लोग को एक लिंक आया है, आप लोग को दिल से लग रहा है कि नहीं यार ये फेक हो सकता है, ओके। फेक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अभी उसको पता कैसे करे कि वो फेक है या नहीं, ओके। तो इसमें इसमें मैं एक बात ध्यान देना चाहूंगा कि हम लोग को इसमें थोड़ा सा मैथ्स का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ओके। अभी जो हैकर्स होते हैं, जो सोलो हैकर्स होते हैं, चाहे वो आप लोगों के फ्रेंड्स हो सकते हैं, चाहे कोई आपके दुश्मन हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि अभी उसने इंस्टाग्राम का लिंक भेजा तो वो इंस्टाग्राम में काम करता हो, राइट। सो इंस्टाग्राम ऐसा चीज है कि लोगों को काफी हैक करने की उत्साह बढ़ते रहती है, ओके। तो इसमें एक काफी सिंपल चीज है तो देखना चाहिए, ठीक है। अभी अगर रियल पेज हो, ओके, मैं सबसे पहले ये करना चाहूंगा कि अभी समझो मेरा यूजर नेम है hacker101, ओके। ये यूजर नेम है, मैंने पासवर्ड डाला कुछ भी, ओके। अगर अगर ऐसा कोई यूजर है तो इंस्टाग्राम क्या करेगा, वो रीडायरेक्ट करेगा दूसरे पेज पे और वहां पर से मुझे बताएगा कि हाँ भाई ऐसा यूजर है लेकिन तुम्हारा पासवर्ड गलत है, ठीक है। क्योंकि इंस्टाग्राम के डेटाबेस में जब हम लोग रजिस्टर करते हैं, कोई भी अकाउंट हम लोग रजिस्टर करते हैं, अभी यहाँ पर जैसे कि साइन अप ऑप्शन है, ओके। तो यहाँ पर साइन अप ऑप्शन में हम लोग साइन अप करेंगे तो हम लोग को रजिस्ट्रेशन बोलता है। ऐसा तो नहीं है कि हर एक वेबसाइट में हम लोग जब भी नया मतलब अभी आज रजिस्टर करके हम लोग घुस गए अंदर तो 12 घंटे बाद हम लोग को वापस लॉग इन करना है उसके अंदर तो वापस रजिस्टर करो, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। काफी सिंपल सी चीज है इसमें। अगर इंस्टाग्राम का ऑफिशियल पेज है और मैं अगर लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो ये बताएगा सॉरी योर पासवर्ड वाज इनकरेक्ट, प्लीज डबल चेक योर पासवर्ड, ओके। ये ही एक चीज है, ये जो एरर है यही एक चीज बताता है कि हमारा जो पेज है वो ऑफिशियल है या नहीं है, ओके। अभी यही चीज अगर फिशिंग पेज में डाला होता है, यही सेम चीज, हाँ कुछ चेंजेस नहीं, ठीक है, मेरे को पता है ये गलत है, ठीक है। अगर यही सेम चीज डाला होता इंस्टाग्राम अभी जो फिशिंग लिंक है वो अभी तक दूसरे पेज में मेरे को रीडायरेक्ट कर लिया होता, ठीक है। बस यही एक चीज है जो ध्यान रखना पड़ता है, ओके। और इसी के साथ हम लोग अभी क्वेश्चन वाला सेशन करना चाहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन सेशन मतलब किसी को कुछ डाउट है या कुछ भी क्वेश्चंस हो वो अपना माइक चालू करके प्लीज बता सकते हैं। सो जिनेश, कैन यू प्लीज डू द फॉलोइंग। जिनेश, ओके नेवर माइंड। सो किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो वो बोल सकते हैं, ठीक है। रेज हैंड का अगर ऑप्शन होगा तो प्लीज बता देना, या तो अपना माइक फ्लिकर कर देना, बंद चालू करो तो हम लोग को पता चल जाएगा। कनिष्क प्लीज लुक आउट आफ्टर द पीपल।
सेकंड आई गेस एवरीवन हमारी तरफ से म्यूटेड है वो लोग, नहीं वो ओके बिकॉज उनके माइक में रेड वाला ये कलर दिख रहा है, दैट्स व्हाई। जिनेश या कोई भी मैनेजमेंट वाला कोई है क्या यहाँ पर? होल्ड अ सेकंड, आई विल जस्ट बी बैक, मैं कांटेक्ट करके आया हूँ। कोई नहीं गाइस, आप चैट में भी लिख सकते हो क्वेश्चन, हम वहां से देख के आपको आंसर दे देंगे उसमें। Oh, yeah. IP logger. Okay. I'll just show you one more thing. If you have time, I'll just show you how IP address is important. The importance of IP address. Okay. Just click back, bro. Ashley, just do one thing. Stop sharing your screen. I'll just share my screen. Okay. Okay. So I'll just show you how IP address is important और क्या क्या details निकलती है. Let me show you. I'm gonna start sharing. Okay. So are you able to look at my terminal, everyone? I have grabbed few IP addresses over here, right? It is my own IP address because I tried it on my own. I'm just going to copy this IP address, और IP address copy कर लिया. IP address copy करने के बाद I'm just going to go to Firefox. Simple, very simple thing. Okay. And after I go to Firefox, I go on with IP. कनिष्क जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड, किसी को भी कुछ क्वेश्चन हो तो अपना माइक अनम्यूट करके वो पूछ सकता है. ओके, जस्ट बी पेशेंट इनफ एंड वेट फॉर योर आंसर्स. Okay, yeah, IP address. How is IP address important? ठीक है, I just go to IP lookup. दिख रहा है, I hope सबको. I just go to IP. As I've copied that IP address, वो instant IP address lookup. अब मैं क्या क्या डेटा खींच सकता हूँ IP address से? Let me show you. मैंने पेस्ट कर दिया इधर. सिंपल है, ये तो वेबसाइट भी मिल जा रही है इसके लिए. I just go, I search on IP address. Oh, so you got my data, you got my decimal, you got my host name, you got my ASI, you got my ISP, my Ticona internet service provider, my location, Madhya Pradesh, Indore. You got everything basically. Okay, so this is not the only website which will give. So this website is a small website which will give you few details actually. Okay, there are many other websites which can actually give you the phone's current battery कितना है फोन में क्या क्या हलचल हो रही है, everything you will be getting to know. IP address is that powerful, so you must be safe. You must not reveal your IP address to anyone, whether it is private IP address or public IP address, no matter what. This was an important of IP address. That was all for today. Thank you, Kanishk. So can you stop sharing your screen? Yeah. Stop. So guys, if you have any question, you can unmute yourself and you can ask. Hello, sir. Yeah, please tell me your name first, okay, before you start. Myself, Lokesh. पूछो. How NordVPN is helpful in not revealing the exact IP address? NordVPN. NordVPN, okay. Kanish, you want to say about this something? The NordVPN is basically, देखो VPN में सिंपल चीज होती है कि IP चेंज करता है डिवाइस का, ठीक है. तो IP के अंदर बहुत सारी चीज होता है, लाइक सॉकअप होता है, सॉकअप पाई होता है, वो सब जिसके अगर तुमको टर्मिनोलॉजीज पता है तो यू कैन कस्टमाइज योर VPN, ठीक है. बट NordVPN कैसे हेल्प करता है, यू आर आस्किंग. तो NordVPN Okay, बेसिकली 1 second. Actually VPN होता है, ठीक है. तुम नॉड यूज करो या ओपेरा यूज करो, अपना नॉट ओपेरा, आई फॉरगॉट दैट VPN's नेम. प्रोटोन, या प्रोटोन एग्जैक्टली, ठीक है. तुमको बस एक चीज ध्यान देना है कि तुम है ना फ्री वाला VPN ना यूज करो, ठीक है, क्योंकि फ्री वाला में ज्यादा सिक्योरिटी नहीं होता. ओके, तो यूज करो चाहिए तो अपना बेसिक, ठीक है, इनकॉग्निटो मोड पे तुम लोग यूज कर सकते हो, लेकिन वो हैकिंग वो सब के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा फ्री VPNs. अगर अच्छा वाला VPN चाहिए तो प्लीज बाय इट फॉर योरसेल्व्स. और हाँ, डोंट डू एनी इलीगल एक्टिविटीज यूजिंग VPN. VPN इज जस्ट अ बॉर्डर, ठीक है. यू डोंट थिंक दैट कि VPN लगा दिया, IP स्पूफ हो गया, कोई मेरे को आई एम एनोनिमस मेरे को ट्रेस नहीं कर सकता. VPN इज जस्ट अ बॉर्डर, ठीक है. बॉर्डर को साइबर सेल क्रॉस करके तुम्हारे तक पहुंच सकती है. इट्स फ्रॉम माय एक्सपीरियंस. Yeah, Sir, thank you. hello. या प्लीज से. Myself Harsha Singh, sir. Sir, I am saying that कि मोबाइल में जो IP एड्रेस होते हैं वो हमेशा चेंज हो जाते हैं ना, मतलब सर कि जैसे कि मतलब अगर हम लोग फ़ोन स्विच ऑफ करके वापस रिबूट कर देते हैं
थोड़े समय के लिए वो रहता है, बट अभी 1 हफ्ते के बाद हमेशा चेंज हो जाता है, क्योंकि आईपीएल वाले लोग कहते हैं कि मतलब हम लोग हमेशा न्यू डेटा देते रहते हैं, न्यू आईपी एड्रेस हमेशा चेंज होता रहता है ऐसा। ओके, एक काम करो, तुम अपना जरा माइक म्यूट करो, एक्चुअली ज़्यादा ही नॉइज है। ओके, सो इसमें एक बात है कि तुम्हारा जो फ़ोन में आईपी होता है वो पब्लिक आईपी नहीं, प्राइवेट आईपी होता है। ठीक है, जो चेंज होता है, जो आईएसपी की तरफ से चेंज होता है, वो होता है पब्लिक आईपी चेंज। और पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी में काफ़ी अंतर है। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट आईपी जो है शायद जो तुम्हारा है वो मेरा भी हो सकता है। ठीक है, तो प्राइवेट आईपी जो है वो स्टेबल रह सकता है डिपेंडिंग ऑन द डिवाइसेस यू हैव इन योर हाउस। ओके, अगर समझो रोज का 3 डिवाइस कनेक्टेड होता है, ठीक है, लेकिन कोई मेहमान आया, 4 डिवाइस कनेक्ट हो गया, तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे अंदर आने के पहले, तुम्हारे घर के अंदर आने के पहले वो आ गया और तुम्हारा जो प्रीवियसली आईपी एड्रेस था वो उसको मिल गया। ओके, तो ऐसा जरूरी नहीं कि आईपी एड्रेस हर टाइम चेंज होता रहता है। ठीक है, ये चेंज होता है, वो जो डेटा वाला जो आईएसपी तुमको बताता है वो पब्लिक आईपी चेंज होता है। Okay, और कुछ? लाइक देन एशले के साथ कुछ नथिंग नथिंग। एशले को किसी को पूछना है कुछ? मेरे को किसी को पूछना है? एनी क्वेश्चंस फॉर मी कोई भी और कुछ एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो, एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट? और एल्स हम लोग को पूछना पड़ जाएगा। ओके, आई गेस You guys sure you don't have any questions? आलोक, रुद्रा, दीपक, निखिल, मिलन, कार्तिक, गोस्ट राइडर वगैरह, रितेश, राहुल, हरिओम, रोहित, नमन, मिस्टर जैक, इंडियन गेमर, कुछ क्वेश्चन है आप लोगों का? हेलो भाई। हाँ जी, पूछिए। मैं फिशिंग अटैक ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहा था, और मैं टर्मक्स में यूज कर रहा था वो You जेड can you फिशर, can नेक्स्ट फिशर सब। you can speak in English if you want, if you are not comfortable with Hindi. ओके ओके, I was using Yeah. Z Fisher and Next Fisher. I have tried almost 2-3 fishing this one tools, but most of them are showing the problem in Ngrok. It's showing like the tunnel is not found. I don't know, I But am sending you a I was message. getting the, Just hold a yeah, I second. It have message depends. Kanishk by. Mm-hmm. Okay, it depends on the port which you are using. If the tunnel नहीं, वो isn't getting connected, Huh. I have one even second. used the on the this one mobile hotspot still, and many people are facing the same issue. okay, Did you Kanishk turn will on your help you with hotspot? that. नहीं नहीं, एक hotspot on किया तुमने? And Yes, you bro. use mobile data before Ah, using yes. Termux? Ah, yes. Ah, yes. तुम्हारा Actually, one second, Alok. Actually, we are here for security measures, not for unethical measures. So Huh. you just Sorry, need I to was search just this on Google. okay, 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 Yeah, okay. Thank you. yeah, Deepak. Yeah, Deepak, you wanted to ask me something? Ask me or Kanishk सर मैं anything. थोड़ा लेट जो ज्वाइन हो पाया था, तो सर ये वेबिनार स्टार्टिंग से चल रहा है क्योंकि इसमें जेट फिशिंग का पार्ट पढ़ा रहे हो आप? एक्चुअली जेड फिश अपना फिशिंग के पहले हार्डवेयर का भी हो गया, वो काफ़ी लंबा था। के तो तुम लेट हो गए, तो अभी जो सेशन रिकॉर्डेड है वो यूट्यूब पे आ जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो। और कुछ भी डाउट रहेगा, वाईएससी के मैनेजमेंट वाली टीम जल्दी लाइव सेशन करेंगे, तो उस पर आप अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अच्छा सर, आप ये कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं कि कोई नया? कोर्सेज नहीं है, ये सिक्योरिटी मेजर्स के लिए है। वेबिनार है। एक्चुअली नहीं, अभी जो साइबर वेबिनार थ्रेट्स, वापस क्वेश्चन पूछिए ना अपना। नहीं सर, जो आपने वेबिनार कंडक्ट करवाया है सर, ये नए बैच वैच के लिए या कोई किस लिए कराया है आपने सर? नहीं नहीं, ये ह्यूमन एजुकेशन के लिए है, सिविलियन अच्छा एजुकेशन। या तो इसमें जो जिनको नहीं पता है काफी कुछ, उनको हम लोग नॉलेज दे रहे अच्छा सर। हैं। तो सर मुझे एक चीज बताइए, जैसे कि हम पोर्ट नंबर चेंज करते हैं, हम्म। तो सर उससे उस मशीन पर या उस फाइल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता? कहने का मतलब मैं जैम्प यूज कर रहा था, आई थिंक
XAMPP था, तो उसका एक पोर्ट नंबर चेंज कर रहे थे उसमें वीडियो में 1086 था आई थिंक, 6 की जगह 7 कर रहे थे। तो सर इससे और कोई इफेक्ट नहीं पड़ता होगा सर? नहीं, अनलेस एंड अनटिल तुम्हारे उस पोर्ट पे कोई और सर्विस होस्टेड है, ठीक है। अगर कोई सर्विस अच्छा होस्टेड है तो नहीं हो पाएगा। अच्छा, जो होस्टेड हुई यार, हमने दोनों होस्टेड को मतलब कि एक तो पहले से थी सर, हमने दूसरा पोर्ट वही पोर्ट नंबर अब हमने वहां डाल दिया, तो सर फिर क्या होगा? अगर हटा के अगर तुमने वापस से उसको जो सर तुम्हारा जो हटाया भी नहीं है ना अभी, क्या क्या अभी हटाया नहीं है। जो हमने जैसे 104 पे डली हुई थी कोई मशीन, और हमने वही पोर्ट नंबर वहां पे डाल दिया दूसरी जगह पे, तो मल्टीपल मशीन फिर क्या होगा फिर? इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्या सर, कुछ समझ में नहीं आया, सॉरी। एक काम करो, सुनो, ये अनएथिकल चीजें हैं, वो एक काम करते हैं, लाइक कल लाइव सेशन रहेगा शायद ऑन इंस्टाग्राम या गोइंग लाइव, तो उधर पूछ लेना जो भी पूछना है ये सब चीज़ों के बारे में। अभी ओके तो सर, हार्डवेयर और फिशिंग के रिलेटेड कोई भी डाउट वगैरह था उसके लिए है। ओके। एनीथिंग एल्स? ओके, सो क्रिश्चियन। तो गाइस, थैंक यू आप लोग हमारे साथ इतनी देर तक थे हमारे सेकंड वेबिनार के लिए, और आई होप कि आपने बहुत सी चीज़ें सीखी होंगी, और आने वाले वेबिनार्स में आप ज़रूर आएंगे, हम आशा करते हैं। सो द वेबिनार एंड्स हियर। थैंक यू एवरीवन। Thank you so much, guys, for attending this. Thank you all. Take care and stay safe, everyone. All can take a leave.